جو کلمہ بدر بھجن نے سنایا، ایک بات خداوند نے کہی مجھے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے خداوند کی روح کہے ویسا کرنا چاہیے. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ جب ایک ڈاکو نے، گناہ گار نے، ہاللیلویہ، گناہ گار نے خداوند سے یہ بنتی کی کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور خداوند نے کیا کہا؟ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں، اگر آپ توبہ کر لیتے اور خداوند سے مانگ لیتے ہیں تو خداوند یوں کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا. آج ہی، کل نہیں، آج. جو بات آپ خداوند سے سچے دل سے کہہ دیں گے وہ آج ہی اور ابھی اسی گھر میں، اسی میٹنگ میں ہو سکتی ہے. اگر اس گناہ گار کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی گناہ گار، ہم بھی ایسا خداوند سے وعدہ لے سکتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں ییشو مسیح ہوگا وہاں وہ ڈاکو بھی ہوگا. ہاللیلویہ. لیکن وہ ڈاکو نہیں رہا کیونکہ وہ دھرمی ہو گیا، کیونکہ ییشو مسیح نے اس کو معاف کر دیا تھا. ہاللیلویہ. آئے اور خداوند کے کلام کے طرف جاتے ہیں. سسٹر نیکد ہمارے ساتھ ہے، وہ خداوند کے کلام میں سے ہمارے ساتھ ایک کلمہ شیئر کریں گے. خداوند کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے جو محبت کا کلمہ ہے. اور ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب، اس کی 25 اور 26 آیت. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند تیرا شکر، تیری عزت، تیری تعظیم ہو اس وقت اس لمحے کے لیے، دوسرے تمام لمحات کے لیے. تیرا شکر ہو زندگی کے لیے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک اور موقع بخش دیا. تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا تاکہ ہم تیرے آج کے اس پاک دن کو دیکھ سکیں. اے خداوند جب ہم تیرے صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں کہ کیا ہماری زندگیوں سے وہ پھل ظاہر ہوتے ہیں جو تو چاہتا ہے. اور کہ تمہیں اپنے منہ سے اے خداوند اپنے صلیب پر جان دیتے ہوئے کہے، اے خداوند بخش دے کہ جو آج میں بولوں اے خداوند وہ میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں ہو کر بولے. اور اے خداوند ہماری زندگیوں کے لیے یہ کلام پھلدار ثابت ہو. میری عرض کو سن اپنے حضور میں قبول فرما. تیرے قدوس نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین. اس کلمہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا حصہ ہم مریم کی طرف دیکھیں گے کہ مریم کون تھی اور کیوں خداوند نے اس کو چنا. اور دوسرے حصے میں ہم اس کلمے کی طرف آئیں گے جو یسوع نے اپنی صلیب پر سے ذمہ داری کو پورا کیا. دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اپنی ماں سے کہا اور شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت کا کلمہ ہے، اور ماں کی بیٹے سے محبت اور بیٹے کی ماں سے محبت. یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے ہم 3 لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایک مریم مگدلینی، ایک مریم کی بہن کلپس کی بیوی اور ایک مریم پوت. یہ 3 لوگ خداوند کی صلیب کے نیچے آخر تک رہے. خداوند کے تمام شاگرد سب لوگ اسے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ 3 وفادار خاتون اور ایک شاگرد جو ہے وہ مریم کی صلیب کے نیچے کھڑا ہے جب تک کہ خداوند نے اپنی جان نہیں دے دی. میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ who was مریم؟ مریم کون تھی؟ Why she was chosen from God؟ کیوں خدا نے اسی کو چنا؟ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، خداوند کسی کو بھی چن سکتا تھا، لیکن کیوں مریم کو کیوں چنا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم میں ہمیں بہت سی کوالٹیز نظر آتی ہیں جو یسوع کی ماں بننے کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس سے پہلے جب وہ یسوع کی ماں نہیں بنی تھی اس میں بہت
क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से खुदावन ने मुकद्दसा मरियम को यीशु की माँ होने का जो है वो फजल बख्शा। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब फरिश्ता पैगाम लेकर मरियम के पास आया और उसने मरियम को कहा कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, जो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मरियम की क्योंकि मंगनी भी हो चुकी थी और उस ज़माना में भी जो लोग थे वो हमारी तरह ही थे, जो एक बड़े बेइज्जती और शर्म की बात समझते थे अगर शादी से पहले हामला हो जाना। तो उस वक्त उसके ज़हन में बहुत से ख्यालात आए, बहुत सी बातें आई, लेकिन उसने फिर भी अपना जो था ओबीडियंस ज़ाहिर की। उसने फिर भी फरिश्ता को क्या जवाब दिया, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और उसके बाद जब उसने ऐसा कह दिया, उसने अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस किया क्योंकि वो यीशु की माँ बनने वाली थी। इससे बड़ी फ़ख्र की बात उसके लिए कोई नहीं थी कि वो हमारे यीशु की माँ बनती। और उसने इस बात को इस तरह से भी लिया कि जैसे कलाम में लिखा है कि अब से हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो उसके लिए ये बड़े फ़ख्र की बात हो गई और खुदावंद के लिए कि उसने कितनी ओबीडियंस ज़ाहिर की कि उसने मेरी बात को माना। उसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, यूसुफ क्या कहेगा, लेकिन उसने खुदावंद की बात को मानते हुए वो उसमें आगे बढ़ गई। फिर हम देखते हैं उसकी हम्बलनेस क्या थी। जब उसने यीशु को जन्म देना था तो क्या हुआ, उसने कहाँ जन्म दिया, एक सराय में जन्म दिया। शायद वो सोचती होगी कि कोई ऊंचा महल होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैंने एक बादशाह को जन्म देना है, लेकिन उसकी हम्बलनेस देखें। उसने यीशु को एक सराय में जन्म दिया जहाँ पे मवेशी चारा खाते, जहाँ पे मवेशी रहते थे। ये उसकी हम्बलनेस थी जो उसने कबूल की। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु ने पहला मौजज़ा काना गलील में शादी में किया कि उसने मैं जब ख़त्म हो गई तो उसकी माँ ने उसको रिक्वेस्ट की यीशु को कि तू कुछ कर। उसने क्या कहा, उसने कहा आए औरत मेरा तुझसे क्या काम। यहाँ पे उसने गुस्सा नहीं किया कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं उसको हुक्म दे सकती हूँ। लेकिन वो उसकी हम्बलनेस देखें, उसने कुछ नहीं वहाँ कहा और उसने कहा, जो लोग पास खड़े थे उसने कहा जैसा ये कहता है वैसा ही करो, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु ये कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 41 से 52 तक जो आयत है उसमें हम देखते हैं अगर आपको किसी को मिलते हैं तो आप पढ़ें। लूका की इंजील 2 बाब 41 से 52 तक। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जलाया करते थे, पर जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई। हाँ जी, और देखिए हम देखते हैं कि जब यीशु 12 साल का हुआ और वो अपनी ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम में गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी इबादत की, ईद मनाई। और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है और वो काफिले में उन्होंने ढूंढा, काफ़ी जगह ढूंढा। 3 दिन तक लिखा है कि वो यीशु को ढूंढते रहे। जब वो चौथे दिन वापस हैकल में पहुँचे तो यीशु 12 साल का था और वो किनके साथ बैठा हुआ था, बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था। बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द थे और उसकी माँ ने उससे गिला की। उसने कहा कि हम तुझे इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ है। उसने क्या जवाब दिया, मुझे अपनी बाप की मर्जी को पूरा करना ज़रूर है। तो यहाँ पे भी मरियम जानती थी कि ये सब कुछ होना ज़रूर है, लेकिन वो क्योंकि माँ थी उसको अपने बेटे की फ़िक्र थी, इसलिए वो हर लम्हा हर कदम पे उसकी फ़िक्र करती थी और उससे पूछती थी हर बात के लिए।
फिर वो एक सिंबल वुमेन थी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिंबल था। यीशु को जन्म देने के लिए उसकी जगह सराय में थी, और फिर उसका उठना बैठना हम देखें तो उसका सर्कल था वो बहुत अच्छी ख़वातीन में था। जैसे मरियम मगदलीनी के साथ उसका उठना बैठना था, फिर और अच्छी ख़वातीन थी जो जिनके साथ वो रहती थी। और मरियम मगदलीनी के लिए मैं आपको बताऊँ कि वो औरत थी जो आखिरी दम तक शागिर्दों के साथ रही, और जिसने यीशु के जी उठने की खबर सबसे पहले जाके शागिर्दों को दी। इसलिए ईस्टर को जो है वो लेडीज़ का त्यौहार भी कहते हैं, कि क्योंकि सबसे पहली खबर जो थी वो एक औरत ने जाकर लोगों को दी कि खुदावंद जिंदा है। और फिर उसकी एक और ओबीडियंटनेस जो है वो हम देखते हैं मरियम की, कि जब गतसमनी बाग में शागिर्दों को यीशु कह के गए कि मेरा इंतज़ार करो, जागते रहो और दुआ करो, लेकिन शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्द सो गए। लेकिन मरियम की ओबीडियंस देखें कि मरियम फिर भी उसकी क्रॉस के पास, उसकी सलीब के पास आखिरी दम तक उसने उसका साथ दिया और वो बैठी रही। और मेरे अजीज़ों, ये एक माँ ही ऐसा कर सकती है कि जो आखिरी दम तक अपने बेटे के दुख और तकलीफ में उसका साथ दे। और वो जानती थी कि यीशु को इन सारी तकलीफ़ों का सहना ज़रूर है। फिर इसके बाद 3 बातें जो है हम उस पर अपने लिए अपनी ज़िंदगियों में उनको देखेंगे कि क्या हम उन बातों को पूरा करते हैं। पहली बात ये कि हु वी आर, क्या हम अपनी पोस्ट से, पोजीशन से या अपने सर्कल से जाने पहचाने जाते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या है और हम किन लोगों में हमारा उठना बैठना है, और क्या हम खुदावंद की उन बातों को पूरा करते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में चाहता है। फिर खुदावंद जो है He wants all those qualities in our lives जो वो अपनी माँ में देखता था। वो चाहता है कि हम हर औरत में वही क्वालिटीज़ जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए वही हो। और खुदावंद ये भी चाहता है कि हम भी अपने माँ बाप की उसी तरह इज्जत करें जैसे उसने अपनी माँ की इज्जत की, कि उसने इतने दुख की घड़ी में भी अपनी माँ की जिम्मेदारी को पूरा किया। Where is our place in this world? कहाँ है हम इस दुनिया में? कहाँ है? क्या जब खुदावंद आएगा तो हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? क्या हमने उसके उस तोहफा को, जो रूह कुदस का तोहफा है, क्या हमने उसको अपनी ज़िंदगी में लिया है? क्या हम उसके उन सारे के जो उसके अहकामात हैं, खुदावंद के 10 हुक्म, जिसमें से 5वां हुक्म है कि अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करना, ऑनर योर मदर एंड फादर। तो उसने क्या कहा कि ऑनर योर मदर फादर, तो तेरी क्या होगी इस उम्र जो है इस ज़मीन पर दराज होगी। उसने उम्र बढ़ाने का वादा किया कि अगर तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है तो तू इस ज़मीन पर अपनी उम्र को दराज देखेगा। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसको शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये है, तो वो बड़े प्रिविलेज के साथ, बड़े ऑनर के साथ उस माँ को अपने साथ ले गया। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम दुनियावी माँ बाप हैं या माँ की ही आप मिसाल ले लें, तो अगर बच्चा जो है उसको कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि सब छोड़ देते हैं, उसके दोस्त भी छोड़ देते हैं, उसके कई दफ़ा बीवी भी छोड़ देती है। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी भी हाल में। और लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। इसके हम दूसरे हिस्से की तरफ आए, हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस वक्त हम देखते हैं कि यीशु की सलीब के नीचे 3 लोग थे, यीशु, उसकी माँ और यूहन्ना। 3 लोग जो हैं वो उसकी सलीब के नीचे हैं। और
खुदावन यसु जो है यसु मसीह, बल्कि उस वक्त यसु मसीह वहाँ पर अपनी सलीब से क्या जिम्मेदारी अपने दोस्त यूहन्ना को सौंपता है कि ये तेरी माँ है और माँ को कहता है ये तेरा बेटा है। ये सलीब की दास्तान जो है ये मोहब्बत की दास्तान है। मोहब्बत अपनी माँ से और मोहब्बत अपने बेटे से माँ की। सलीब से बहता हुआ खून जो है वो माँ को नज़र आ रहा है। हाथों में 6-6 इंच के कील जड़े हुए हैं, पसली में उसके भाला लगा हुआ है, कोड़ों की मार से उसका बुरा हाल है, सर पर उसके कांटों का ताज है, लेकिन फिर भी वो सलीब पर से अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करता है। और सलीब पर से वो उसको क्या कह के पुकारता है, आए औरत देख तेरा बेटा ये। शायद अगर वो उसको माँ करके पुकारता तो माँ का दिल और छलनी हो जाता, माँ और उदास हो जाती, लेकिन उसने उसको आए औरत कहकर पुकारा। और आए औरत कहना एक बहुत बड़ी इज्जत की बात, बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि हम अपने खुदावंद को आए खुदावंद कहकर पुकारते। और वो भी बोली थी, इसलिए उसने उसको आए औरत कहकर पुकारा। और वहाँ से जब माँ उस बेटे को देखती है तो वो खुदावंद से गिला भी करती है कि खुदावंद क्या ये प्याला मेरे बेटे से टाल नहीं कर सकता, तू तो सब कुछ कर सकता है, क्या तू इस दुख से इसको निकाल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वो जानती थी कि ये सब कुछ जो है इसका होना ज़रूर है, क्योंकि और फिर हम देखते हैं कि यीशु की जब नज़र सलीब पर से अपनी माँ पर पड़ती है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है, यूहन्ना ही को क्यों उसने अपनी माँ को सौंपा, क्योंकि यूहन्ना एक उसका वफादार शागिर्द था जो सारा वक्त जो है अपनी माँ के साथ उस सलीब के नीचे रहा जिसको यीशु ने उसको सौंपा था। और यूहन्ना जो है उसका अगर हम देखें यूहन्ना 21-24 में तो वहाँ लिखा है कि इन बातों की गवाही देता है उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना ने इन सब बातों की गवाही दी और जो सच्ची बातें थी वो सब जो उसने सलीब के नीचे देखा उसने उन सब बातों की गवाही दी और सब बातें सच्ची थी। और यीशु ने उसको एक रिलायबल, एक ऑनेस्ट अपना शागिर्द जानते हुए अपनी माँ की जिम्मेदारी उसको दी और यीशु अपनी बहुत सी बातें उसके साथ शेयर भी करता था। और इसीलिए उसने जो बुक ऑफ रेवलेशन है इसीलिए उसने लिखी, जो यीशु ने बातें उसके साथ शेयर की थी उसने उस बुक में वो सारी बातें लिखी। इसके बाद सलीब पर से यीशु ने क्या क्या किया, यीशु ने सलीब पर से माफ़ी दी, हमें माफ़ कर दिया। जिनके गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ा उसने उनके गुनाहों को माफ़ किया। उसने डाकू को फिरदौस का वादा किया कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, और माँ को बेटा और बेटे को माँ देती। इतनी अजियत में भी उसने अपने सारे फ़राइज़ को पूरा किया। मुकद्दसा मरियम इस शागिर्द के साथ ही उसकी मिनिस्ट्री में बहुत देर तक शामिल रहीं और बहुत से उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे काम किए जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक थे। और मरियम मगदलीनी को अगर हम देखें तो वो तब तक शागिर्दों के साथ रही जब तक उन्हें यीशु ने जी उठने के बाद उनको पाक रूह का मसा ना दिया, तब तक वो उन शागिर्दों के साथ ही रही। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हम आज उस यूहन्ना की तरह हैं या उस योना की तरह है जो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और फिर उसको अक्ल आई कि खुदावंद जिस राह पर मुझे लेके जाना चाहता है मुझे उसी राह पर जाना है, उसी राह पर चलना है। क्योंकि खुदावंद जब आपको चुन लेता है अपने लिए, जब आपको पाक का मसा दे देता है तो हमें उन्हीं राहों पर चलना है जो खुदावंद जिन पर हमें लेके जाना चाहता है।
यहाँ मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी कि दो दोस्त थे, एक दोनों मसीही थे, लेकिन एक खुदावंद को मानता था और दूसरा उसकी राहों पर नहीं था चलता। और बहुत दफ़ा उसके दोस्त ने उसको समझाया कि तू खुदावंद के नज़दीक आ, खुदावंद के नज़दीक आ। उसने कहा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मैं जब मेरा वक्त होगा मैं आ जाऊँगा खुदावंद के नज़दीक। लेकिन ये क्या हुआ, आफ्टर 3 days उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। क्या हुआ, कहाँ गया वो? क्या वो फिरदौस में गया? क्योंकि उसने तौबा नहीं की। इसलिए हमारे लिए तौबा करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब खुदावंद हमें किसी घड़ी भी बुला ले हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो, हम उसके पास जाने के लिए तैयार हो, ना कि हम इंतज़ार करते रहे कि अभी हमारे पास वक्त है, जब हमारी दुनिया की जो ऐशो इशरत है, जो दुनिया के काम है वो पूरे हो जाएंगे तो फिर हम खुदावंद के पास चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त, सबसे बड़ी जो बात मैं चाहती हूँ कि हम जो बच्चे हैं वो अपने सामने ये बात रखें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को उन्होंने बड़े होना है। सिर्फ एक बात अपने ज़हनों में रखें कि अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से एक हुक्म है। आखिर में मैं इस छोटा सा कुछ बोलूँगी आपके लिए और उसके साथ मैं बात करूँगी। कैसी थी वो दर्दनाक अंधेरे की घड़ी, यस्सु को तड़पता देखकर माँ थी दुख से भरी। बेटे से बेहतर कौन जाने माँ की खामोश फरियाद, जिसने उसको जना और दी बचपन की मीठी यादें। चुकाया उसने बाप के आगे हमारे गुनाहों का कर्ज, मगर मरते हुए भी न भूला बेटे होने का फर्ज। सूली पर चढ़कर दिखाई मुझे, सूली पर चढ़कर दिखाई मोहब्बत और दी अपनी जान। माँ को दिया बेटा और प्यारे दोस्त को दी अपनी माँ। खुदा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 कलमे हुए, 4 और बाकी है, तो खुदावंद ने सलीब का हाँ Megan has a question. What? After Jesus went to heaven, did Mary still remain faithful to God? Yeah. She filled with the Holy Spirit. She received the Holy Spirit after Jesus' resurrection, the day of Pentecost. All right, we'll talk about the later. So